गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी फॉर यू एंड द मोस्ट अवेटेड लेक्चर एंड सॉरी फॉर सो लेट प्रोवाइडिंग दिस लेक्चर टू यू. वी आर स्टार्टिंग विथ आईटीसी का क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, दैट इज सेक्शन नंबर 17. Section number 17 we are going to start up with, and I'm not going to explain you this chapter, this particular section with the help of my chart, because I have something for you and that is a detailed explanation about this. Explanation that you haven't thought कि ये भी हमें इस चैप्टर में सोचना चाहिए था या सोचना पड़ सकता है. तो let us start with ITC, and ITC का we are going to start with the section number 17. Being very direct, coming to the सेक्शन नंबर 17 प्रोविजन. यहाँ पे नाम क्या लिखा है, थोड़ा सा हम अगर नाम समझें, क्या समझें कि क्या लिखा है. सेक्शन नंबर 17 इज अबाउट व्हाट? सेक्शन नंबर 17 इज अबाउट apportionment of credit apportionment and block credit. That means this section number 17 not only provides that कि there is apportionment of credit, that means a particular part of the credit will be allowed to the person. It also states that there are some credits that will not be allowed, some taxes paid that will not at all be allowed for GST, ITC. Okay, so if I talk about apportionment, the section that are related to apportionment are section 17 subsection 1 to section 17 subsection 6. 17 subsection 1 says 17 subsection 6 is about the apportionment of credit. However, 17 subsection 5 among this is about blocked credit. 17 subsection 5 is about what? It is about the blocked credit. Let me tell you one thing. Section 17, we are talking about section 17. Just a minute. We are talking about what? We are talking about section number 17, and section number 17 gives us knowledge about apportionment and ब्लॉक्ड क्रेडिट. अपोर्शनमेंट का अगर मैं बहुत इजी वे हिंदी बोलूँ तो ये है कि एक पर्टिकुलर हिस्सा जो आपने जीएसटी पे किया, जीएसटी पे करके आप आईटीसी क्लेम करते हैं, तो उस आईटीसी का पर्टिकुलर हिस्सा जो होगा दैट विल बी अलाउड एज क्रेडिट. बाकी का जो हिस्सा होगा, प्रपोर्शन होगा, दैट विल नॉट बी अलाउड एज क्रेडिट. So ITC में section number 17 is about apportionment. It is about apportionment, and it is also about blocked credit, and it is also about blocked credit. If I talk about block credit, I will talk section number 17 subsection 5, but if I talk about apportionment, section number 1 to section number 17 subsection 6. Okay. Now, this apportionment is possible in two cases. अगर मैं apportionment की बात करूँ तो apportionment is possible in two cases. Apportionment दो cases में possible है. 17 subsection 1 deals about that case, as well as 17 subsection 2 deals about that case. 17 subsection 1 and 17 subsection 2 deals about that case of apportionment. तो चलो सबसे पहले 17 सबसेक्शन 1 के तार खोलते हैं. तो 17 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स सर्विस और बोथ used by the registered person, that is used by whom? Used by registered person for purpose of any business, for the purpose of any business, and for partly for other purpose, partly for the purpose of business, partly for other purpose, amounts to what? Amounts to credit shall be restricted to such ITC that attributes for the purpose of his business. सीधी बात ये है, हमने जब सेक्शन नंबर 16 किया था, सेक्शन नंबर 16 में था कि बिजनेस पर्पस के लिए हमें गुड्स को यूज़ करना है. तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट में कहा है, इफ पर्टिकुलर
गुड्स और सर्विस, अगर कोई पर्टिकुलर गुड है, कोई पर्टिकुलर सर्विस है, इफ देयर इज पर्टिकुलर गुड, इफ देयर इज पर्टिकुलर सर्विस, एंड दिस पर्टिकुलर गुड or service is used partly for the business purpose and partly for other purpose, partly for business purpose, partly for other purpose, in that case the goods or service that is used for the goods and service that is used for business purpose, utne proportion ka, for that proportion ITC will be allowed, only for that proportion ITC will be allowed. So I should write over here like this ki partly, if it is partly for business, if partly for business purpose, partly for other purpose, partly for business, partly for other purpose, then ITC for business purpose, if goods and service are used for the business purpose, ITC will be allowed. If goods and service are not used for business purpose, that is other purpose, then no ITC will be allowed. And that common good, that good that is used for business as well as other purpose, we have to apportion, हमें apportion करना होगा कि कितना कितना goods जो है कितना business purpose के लिए use हुआ है, कितना partly purpose के लिए use हुआ है. Are you getting the point? 17 subsection 1 is partly for the business, partly for other purpose, and now we are covering 17 subsection 2. 17 subsection 2 क्या कहता है? 17 subsection 2, where good service or both used by registered person, partly for taxable supply, that includes zero rated supply. I am going to have a detailed discussion on only this point, that is taxable supply including zero rated supply, or under integrated goods and service act, partly for exempt supply or partly for exempt supply, then credit is restricted to, then the credit is restricted to such amount that attributes to the taxable supply including zero rated supply. A very common thing to अंडरस्टैंड कि अगर टैक्सेबल सप्लाई है एंड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको आईटीसी अवेल हो जाएगा, देन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो जाएगा. हाउएवर अगर exempt supply है, अगर exempt supply है तो ITC will not be available, and this is being discussed over here in 17 subsection 2, that goods or service are used partly, goods and service are used partly for exempt supply, are used partly for what? They are used partly for exempt supply, as well as they are used partly for taxable supply. Now let me tell you, if they are used for the taxable supply, ITC but obvious will be available, and if they are used for exempt supply, ITC will not be available for that proportion. So there are two cases when there is apportionment. Basically दो cases हैं जहाँ पे हम बात करते हैं apportionment की. तो दो केस 17 subsection 1 में दिए हैं and एक दिया है 17 subsection 2. 17 subsection 1 partly for the business purpose, partly for other purpose, and 17 subsection 2 partly for exempt purpose, partly for taxable purpose. यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत, शिकायत, शिकवा कुछ भी है तो पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से एक नया लेवल स्टार्ट होता है हमारे आईटीसी का. इतना तो आप रीड करके खुद भी समझ लेंगे कि ओके यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल इंक्लूड ज़ीरो रेटेड सप्लाई, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एग्जेम्प्ट सप्लाई. सबसे पहले हमें ये जानना होगा अब कि एक्चुअल में अगर हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई की कहानी कही भी गई है, इफ़ वी आर asked about the exempt supply, मुझसे कोई पूछे कि ये exempt supply क्या है, तो for me common language में I will be saying that on which no GST is payable. If I talk in common language, अगर common language में कहूँ तो no GST payable. Exempt supply means where no GST is payable, जहाँ पे कोई भी GST पे नहीं होता है. लेकिन common language से हम
समझ तो सकते हैं लेकिन हमारी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो चलो हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ एग्जाम सप्लाई। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम सप्लाई, सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। Section 2 subsection 47 is about exempt supply, and according to section 2 subsection 47, exempt supply means nil rated supply। जहाँ पे जीएसटी पे नहीं करना होता तो नील रेटेड अगर सप्लाई है, तो मैं अगर कॉमन लैंग्वेज से इसे लिंक करूँ तो नील रेटेड सप्लाई ऑन विच नो जीएसटी इज पेबल। सो नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई ऑन विच नो जीएसटी इज पेबल इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट सप्लाई। कवरिंग नेक्स्ट दैट कुछ एग्जेम्पशन इशू किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, एग्जेम्पशन इशू किया, एग्जेम्पशन 100% एग्जेम्पशन पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विस पे। दैट मीन्स एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की बात करी जा रही है। तो अगर एग्जेम्पशन आपने दिया है, कुछ भी एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने 100% दिया है, दैट मीन्स नो जीएसटी इज पेबल। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन को देना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 100% एग्जेम्प्ट है, दैट मीन्स it is an exempt supply. So here exemption is issued if any exemption is issued, exemption notification is issued, and in that exemption notification 100% exempt किया है goods को या फिर service को। 100% of the goods or service are exempt. In that case it is considered to be an exempt supply. Why we are going into the detail of exempt supply? Because exempt supply पता नहीं चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि अपॉर्शनमेंट के रूल लगाना है, और अपॉर्शनमेंट के रूल है रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इवन in your dearest dream you can think of escaping it, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना 100% है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम सप्लाई नील रेटेड हो गया, जहाँ पे 100% एग्जामेशन है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम सप्लाई। कवरिंग मोर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओ माय गॉड, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? वो होते हैं फॉर द टाइम बीइंग ऑन विच जीएसटी इज नॉट अट्रैक्टेड। फॉर द टाइम बीइंग जिन पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा, बट आगे की फ्यूचर डेट में जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा उस डेट से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। So here we are covering non-taxable supply. Here we are covering non-taxable supply, and this non-taxable supply that will attract GST from the future date. That means for the time being they are not attracting GST. For the time being not attract GST. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ for time being GST not attracted. For the time being GST is not attracted. For the time being GST is not attracted. Now what are the products for the time being on which GST is not attracted? If I can say human consumption, alcoholic liquor for human consumption. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट कवर्ड हेयर, एंड दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी सेल्स टैक्स वगैरह के ज़माने में चल रहे हैं, तो ये नो जीएसटी इज़ एप्लीकेबल टिल नाउ। हाउएवर फ्रॉम फ्यूचर डेट्स जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, जीएसटी का हाईएस्ट रेट जाता है 28%। जीएसटी का हायर रेट 28% जाता है। हाउएवर अल्कोहलिक लिकर पे कई जगहों पे 70-80% का भी टैक्स लगता है। तो जीएसटी काउंसिल किसी भी सूरत में ये लॉस बियर नहीं करेगी, बिकॉज 28 करके भी ज़्यादा नहीं होगा, 70-80% पे नहीं पहुँचेगा, इसीलिए अभी तक ये जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है। कवरिंग 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स जो हमने करे हैं, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, देन क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है। तो यहाँ पे 5 पेट्रो प्रोडक्ट जो हैं, दैट 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नॉट कवर्ड हेयर। दैट मीन्स फ्रॉम द फ्यूचर डेट जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा, एट दैट टाइम इट विल बी कवर्ड इन द प्रीव्यू फॉर जीएसटी।
सो अगर हम एग्जाम सप्लाई की बातें करना स्टार्ट करें तो एग्जाम सप्लाई इज नील रेटेड, जहाँ पे कोई जीएसटी पे नहीं करना। एग्जामेशन आया, एग्जामेशन नोटिफिकेशन के कारण 100% ऑफ द डिडक्शन, 100% क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और अभी जीएसटी नहीं लग रहा, फ्यूचर डेट से लग सकता है। तो दिस आर ऑल एग्जाम सप्लाई, these are all exempt supply. So this exempt supply have been given where it has been given in 2 subsection 47. 2 subsection 47 is all about the exempt supply, and if you are not able to understand the meaning of exempt supply, you won't be able to crack the question of rule number 42, rule number 43 that talks about what? That talks about apportionment. That talks about what? Apportionment. चलो आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना, बिल्कुल 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 कर देना। तो क्या हम मान लें कि इतने ही एग्जाम सप्लाई हैं? तो मैम ऐसा आप बता दें तो हम सोच लेंगे कि इतने ही एग्जाम सप्लाई है, लेकिन नहीं, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दिस आर ओनली नॉट द एग्जाम सप्लाई, देयर आर 3 एडिशनल एंट्रीज दैट हैज़ बीन मेड इन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3. Section number 17 subsection 3 gives 3 additional entries, and according to 17 subsection 3 that 3 additional entries are also considered to be the exempt supply. वो 3 एडिशनल एंट्री को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई कहा जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज 17 सबसेक्शन 3। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, तो मुझे तो पढ़ के ही समझाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, चलो देखें क्या है ये। The value of exempt supply under subsection 2 shall be as such as may be prescribed. Exempt supply जो section 17 सबसेक्शन 2 में है वो प्रिस्क्राइब्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई होंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में कहा वो होंगे। एंड इट शैल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। दैट मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ अ रेसिपिएंट इज फॉलोइंग, यहाँ पे अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होता है, ऑल्दो टैक्स तो पे हो रहा है, point to be noted here, although tax is being paid but tax पे करता है recipient, although tax is being paid, however the tax is paid by the recipient, but here for supplier it is considered to be exempt supply. supplier के लिए exempt supply, because यहाँ पे एक लॉजिक मेरा अच्छे से समझो। क्या मैम, क्या लॉजिक समझा रहे हो? आरसीएम है, आरसीएम में ये हो गया हमारा कौन? सप्लायर, ये हो गया कौन? हमारा रेसिपिएंट, ये है हमारे रेसिपिएंट। दिस इज द सप्लायर, दिस इज द रेसिपिएंट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी। जब जीएसटी इन्होंने पे नहीं किया तो आईटीसी तुम कैसे ले सकते हो? ऑल्दो यहाँ ही इज पेइंग द जीएसटी, तो ही विल क्लेम द आईटीसी। Therefore, for supplier, if he is giving a supplier where tax is liable to pay under reverse charge mechanism, where tax is liable to be paid under reverse charge mechanism, in that case, it is an exempt supply for the supplier. It is an exempt supply for supplier because he will not be liable to take the ITC. Because he will not be liable to take ITC on such supply, and this is so logical. There is nothing to have a double thinking about this. फिर से इस पे सोचने की, हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 17 सबसेक्शन 3 और क्या कहता है? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। ये कैसी बात कर दी? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैम इसका लॉजिक हम बता सकते हैं। क्या बताओगे आप? बिल्कुल बताओ। आप बोल रहे मैम कि ट्रांजैक्शन अगर क्या है, इफ देयर इज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन किया भी है तो मैम जहाँ तक हमें याद आता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स में है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट
money and security, every kind of movable property except money and security. And if I talk about the definition of service, everything other than goods, everything other than goods. तो गुड्स की डेफिनेशन से मैम जब सिक्योरिटी को बाहर कर दिया, दैट मीन्स सिक्योरिटी इज नॉट गुड. फिर सर्विस की डेफिनेशन में कहा कि एवरीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स है एवरीथिंग अदर देन गुड्स. तो गुड्स की डेफिनेशन से सिक्योरिटी तो बाहर हो गई. तो हम ये सोच सकते थे कि यहाँ पे सर्विस में सिक्योरिटी आता है, लेकिन आगे कह दिया गया एवरीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी सिक्योरिटी. यहाँ पे भी सिक्योरिटी को आउट कर दिया. तो सिक्योरिटी इज़ नॉट गुड, सिक्योरिटी इज़ नॉट सर्विस, एंड GST इज़ एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शंस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, and GST is applicable on the supply of goods and service, and this security is neither good, this security is nor service, this security is neither good, this security is nor service. That means clearly no GST applicable over here, and when no GST applicable over here तो मैम ये तो exempt supply हो गया. Very good, and the very good logic you have applied. तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, तो GST तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता है. आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू द क्लॉज B ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग. सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग. तो यहाँ पे आपको पता होगा शेड्यूल 3 पे अगर आप चले जाएंगे, दैट इज़ नेगेटिव लिस्ट में जाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना इज़ नॉट कवर्ड इन GST. शेड्यूल 2 में शेड्यूल 3 में दैट इज़ नॉर इज गुड नॉर इन सर्विस में उसे हटा दिया गया है. तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग इज़ Schedule 3 के according, see here, Schedule 3 के according they are not even transaction of goods, they are not even transaction of service. क्यों मैम? क्योंकि गुड्स में लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड लैंड बिल्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं. दे आर नॉट गुड्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड्स. हाँ, पैरा 5 में शेड्यूल 2 में एक चीज़ दी गई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ दो. वहाँ पे जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा के दे रहे हैं, कंसिडरेशन वगैरह आपको रिसीव हो रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली कुछ बातें हैं, तो वो बात हटा दो. इसको हटाने के बाद अगर लैंड और सिर्फ बिल्डिंग का सेल कर रहे हो, नो, GST नॉट एप्लीकेबल. तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग के बारे में तो हम यही कह सकते हैं, नो GST एप्लीकेबल, नो GST इज एप्लीकेबल. That means if I talk about exempt supply means section 2 subsection 47, exempt supply means section 17 subsection 3. Section 247 as well as 17 subsection 3, this is what is exempt supply. मैम क्या अब exempt supply ख़त्म हुआ? यस, यहाँ पे जाके आपकी कहानी exempt supply की ख़त्म होती है. यहाँ पे जाके क्या होती है? ख़त्म होती है. लेकिन अब there are certain supplies, there are certain supply, although they are taxable, although they are exempt, but उसे taxable consider किया जाता है. मैम ये क्या, अगर exempt है but taxable consider किया जाएगा? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता. कैसे नहीं हो सकता कि exempt है पर taxable consider किया जाएगा? तो अगर मैं आपको ले चलूँ कहाँ पे, मैं इस लाइन पे फोकस कर रहा हूँ कि partly for exempt purpose and partly for taxable purpose including zero rated supply. If I talk about this thing, अगर मैं फोकस यहाँ पे लेके आऊँ, क्या है यहाँ पे? Here they are saying partly, कहाँ है? ये रहा. Goods and service or both are used by registered person partly for taxable supply including zero rated supply.
including what? Including zero rated supply. Partly zero rated supply, taxable supply that includes zero rated supply and exempt supply, partly for exempt supply. तो अगर मैं बात कर रही हूँ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। अब बात आती है ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई दैट मीन्स नो जीएसटी एक्चुअली पेबल। जीरो रेटेड सप्लाई में कोई जीएसटी पे नहीं होता, लेकिन उसे फिर भी टैक्सेबल मानते हुए आईटीसी अवेल करवाया जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेबल सप्लाई, मैंने कहा था है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, लेकिन उसे टैक्सेबल करा जा रहा है। तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर। Zero rated supply means export, it is export or supply to whom, or supply to SEZ unit, supply to SEZ unit or SEZ developer। अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर सप्लाई एसईजेड यूनिट या डेवलपर को कर रहे हो, सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पे ऑल्दो दिस इज एग्जेम्प्ट, टैक्स नहीं लगता, बट इसे टैक्सेबल कहा गया है और टैक्सेबल कंसिडर करते हुए आईटीसी अवेलेबल होगा। ऑल्दो आपने टैक्स पे नहीं किया, लेकिन आपको इनपुट सर्विस के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए यू विल गेट आईटीसी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। आया? यस मैम, बिल्कुल आ गया, अच्छे से आ गया। इसके अलावा आता है आपका एक और चीज़ जहाँ पे ऑल्दो दे आर एग्जेम्प्ट बट दे आर इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सप्लाई। There are two more special supply that are not treated as exempt. There are two more special supply. There are two more supplies which are not treated as exempt supply। इन्हें एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाता है एंड these are given notification number 12 2017, notification 12 2017, जहाँ पे एंट्री नंबर हमारी 27 है एंड एंट्री नंबर 19B है। There is entry number 27, entry number 19B and notification 12 2017 is exemption notification। This is what? This is exemption notification। और इस exemption notification में although they are exempt but still इसे taxable consider करते हुए ITC का benefit दिया जाएगा। Still they will be given the benefit of ITC। Now let us discuss about what is entry number 27 and entry number 19B। In entry number 27 entry number 19B है क्या? अब इसे हम डिस्कस करते हैं। Talking about entry number 27, entry number 27 means where you are getting interest income because you have provided loan or you have deposited something in the bank or you have deposited anywhere and you are getting as interest income। अगर आपको interest income होती है तो on interest income you are not required, it is exempt, you are not required to pay GST, however still you will get ITC। अगर इसे claim करने के लिए आपको कुछ भी GST पे करना पड़ा है तो you will get what? You will get ITC over here। And entry number 19B and entry number 19B is about what? Entry number 19B is about transportation। It is about what? It is about transportation of what? Transportation of export goods। Transportation of what? Transportation of export
goods by vessel, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बाय वेसल। वेसल से जो क्या है, आप एक्सपोर्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो वहाँ पे भी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी फॉर सच सर्विस, हाउएवर यू विल गेट आईटीसी, हाउएवर यू विल गेट आईटीसी। सो अगर मैं सम अप करूँ सारी चीज़ों को, इफ़ आई सम अप ऑल द थिंग्स, तो आफ्टर सम अप मैं ये बोल सकती हूँ अपॉर्शनमेंट की कहानी जो है 17(1), 17(2 के केसेस के अकॉर्डिंग होती है। Apportionment is according to 17(1), 17(2), and 17(1) is when partly for the business and partly for non-business purpose, and 17(2) is for partly exempt and partly taxable purpose, partly taxable and partly exempt purpose. Then if I talk about exempt supply, so exempt supply is in section number 247, that is definition. Then 3 extra transaction that has been covered in exempt supply, and that is given in 17 subsection 3, and other is which are exempt but taxable, उसे treat किया जाता है तो exempt but taxable treat करते हैं, that is zero rated supply, as well as entry number 27 and entry number 19b. If you know all these things, it will be really easy for you to do what? It will be really easy for you to do apportionment. अब बात आती है कि हाउ टू डू अपॉर्शनमेंट। इट इज़ मैं बोलना चाह रही हूँ हाउ टू डू अपॉर्शनमेंट। तो इज़ इट लाइक कि अपॉर्शनमेंट रैंडम बेसिस पे हमारे बेस्ट ऑफ द जजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, अलग अलग ऐसे अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपॉर्शनमेंट करेगा। सो दिस इज़ नॉट द सिनेरियो। ऑलरेडी जीएसटी लॉ हैज़ गिवन some rules, government has prescribed the rules, and these rules are given in 17 subsection 6. So basically 17 subsection 1 gives case, 17 subsection 2 gives case, 17 subsection 3 gives additional things that are exempt. 17 subsection 5 is about blocked credit, and 17 subsection 6 is about giving the rules under which rules GST apportionment, GST credit apportionment takes place. And this section 17 subsection 6 states that government will prescribe, government will what? Government will prescribe. This 17 subsection 4 I have not covered here because ये banking वगैरह से relate करता है। In fact I have not even watched my first part, हो सकता है मैंने शायद आपका banking वाला part first में ही cover करवा दिया हो, तो इसलिए मैं भी उसे छोड़ रही हूँ because मैं एक बार check कर लूँगी। अगर मैंने वहाँ पे first ITC के first part में cover किया है तो यहाँ पे time waste होगा, तो let me check, तो 17(4) हम तब लेंगे। बट वॉट आई रिमेंबर कि जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था तो इतना डिटेल में आपको 17 सेक्शन नहीं करवाया था, एंड सॉरी आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू चेक ऑल्सो, मैं चेक करना का भी टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है। डिटेल में नहीं था, दैट इज़ 100% श्योर। वहाँ मैंने बेसिकली चार्ट से आपको समझाती जा रही थी, बट अब लुकिंग टू द सिनेरियो व्हेन वी आर हैविंग टाइम, इनफ टाइम, तो जितने चैप्टर्स बचे हैं वी विल कवर अप इन डिटेल ओनली। ओके, चलो नाउ कवरिंग वॉट, नाउ कवरिंग सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 6। कहाँ गया हमारा 17 सबसेक्शन 6? तो 17 सबसेक्शन 6 ने कुछ ऐसी बात कही है, government may prescribe the manner in which credit referred to in subsection 1, 2 may be attributed. So that is what government will prescribe, the manner in which credit referred to in subsection 1 and subsection 2 may be attributed. So here we are starting with how credit apportionment take place. Here we are starting with how the apportionment of credit take place, and believe me that is so easy. Believe me, that is so easy. Section number 17 subsection 6 give two rules. One is rule number 42, one is rule number 43. If I talk about rule number 42, it gives apportionment for input service, and 43 gives apportionment about capital goods. It gives apportionment, 42 gives about input and input service, and 43 gives about capital goods. It gives about what? Capital good. Here in this video, we will cover only apportionment of rule number 42.
Here we will cover only that. Then afterwards in next video, that is third part, we will cover 43. पहले आपको सिर्फ 3 पार्ट्स मिलने वाले थे, बट again repeating, now we are having time, so we will do this chapter in much detail. जितना हो सकता है we will cover up in detail, and this will really benefit you and you will enjoy this lecture. And if you are actually enjoying the lecture, if you are actually getting benefited, so this is my humble request, share it as much as possible, because I'm giving all my efforts and I just expect sharing from you, nothing else. Because let's spread the video, let's spread the benefit, and let me get what I want for my efforts. Okay, this is just a humble request. बाकी तो आपके ऊपर है सब कुछ. चलो, covering rule number 42. Let me cover rule number 42. And rule number 42 से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. Before covering rule number 42, let me tell you one thing. Rule number 42 is about what? Rule number 42 is apportionment of input service. Apportionment of what? Input service. However, rule number 43, however, if I talk about rule number 43, it is about capital good apportionment. It is about what? It is about apportionment of input on capital goods. Okay, now let me tell you one thing. This apportionment in section this apportionment क्यों होता है? Because there are two cases. One case is covered in section 17 subsection 1, that is for partly business purpose, partly for other purpose, and second is 17 subsection 2, that is exempt and taxable supply. So if input and input service is used for what? If input and input service is used partly for the business purpose and partly for other purpose, you have to do apportionment. You have to do what? You have to do apportionment, and that is for sure. However, if capital goods are used partly for the business purpose, partly for other purpose, if capital goods are used partly for business, partly for other purpose, in that case, what I will say, there is no apportionment. मतलब capital goods अगर आप business non business purpose के लिए यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ apportionment का criteria नहीं है. There is no criteria for apportionment up till the date. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? दैट मीन्स हियर इवन इफ द कैपिटल गुड्स इज यूज्ड फॉर पार्टली बिजनेस पर्पस, पार्टली फॉर अदर पर्पस, even then you will get what? You will get full credit. Even though you will get what? Full credit. You will get what? Full credit. Okay. Then 17 subsection 2, exempt and taxable supply. Here also apportionment, and in this case also apportionment. That means part of the goods that is used for taxable purpose, you will get ITC, and for exempt supply, no ITC is available. And how to do apportionment? That depends on what? The apportionment depends on rule that has been given by government. And now let us start with rule number 42, that is for apportionment of input and input service. That is for the apportionment of what? Input and input services. Are you getting this right now? Yes ma'am, we are getting this right now. और कहीं भी कोई दिक्कत है तो definitely we will ask through the comment section, and बाकी तो और भी कोई दिक्कत है तो हम पूछ सकते हैं. And during this 2-3 days I was literally busy. इंस्टा पे कुछ मुझे अभी तक क्वेरीज हैं जो आई हैव नॉट आंसर्ड, ऑल्दो आई हैव सीन, बट आई वाज नॉट गेटिंग टाइम टू आंसर इट. सो give me some time. I will try to figure out the things that you have asked, but it will take 1 or 2 days because I'm literally very busy right now. But I don't know how I'm managing to give the videos, but ठीक है. Okay, बढ़े आगे. Yes ma'am, बिल्कुल, definitely.
covering what? Covering rule number 42. Covering rule number 42. So let us directly come on rule number 42. That is so easy and so logical that you won't be in a position to get confused. Okay, let us see rule number 42. Now this is an SSE. This is an SSE. Just a minute. ये रहे हमारे SSE. ठीक है, दिस इज एन SSE. दिस SSE क्या करता है? ही गोज एंड परचेज इनपुट एंड इनपुट सर्विस. He goes to purchase input and avails the input service. For purchase of input and input service, he pays GST. He pays GST. Okay. अब ये क्या करते हैं? GST पे करके आते हैं और अपने रिटर्न में या फिर क्या करें, सोचते हैं, ऐसा रिटर्न तो नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसा सोचते हैं कि टोटल ITC इनके पास कितना है तो वो बुक कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम जितना GST वो पे करके आया है, वॉट एवर GST ही हैज़ पेड, ही विल राइट ITC. तो यहाँ पे टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट सर्विस इन द टैक्स पीरियड. हर मंथ में ये निकलता है, दैट इज़ वाई इट इज़ टैक्स पीरियड. तो यहाँ पे उसे बोल दिया कि इतना टोटल ITC अवेलेबल है. उसे लग रहा है कि इतना मैं पे करके आया हूँ, तो दिस कुड बी माई ITC. लेट अस से दिस वॉज 10 लाख. लेट अस से दिस इज़ वॉट, दिस इज़ 10 लाख. तो 10 लाख का ये हमारा GST वो भाई साहब क्या करके आते हैं? पे करके आते हैं. 10 लाख का GST हम ये लोग क्या करके आए हैं? पे करके आए हैं. नाउ व्हाट इन यहाँ पे आप सोच रहे हैं, मतलब ये सप्लायर सोच रहा है दिस इज़ द टैक्स, दैट इज़ द ITC आई विल गेट. बट फिर उसे बोला जाता है जस्ट वेट, यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दिस ITC that tax that you have paid for the input or input service that were exclusively for non-business purpose. आपने ऐसे input या input services लिए हैं. You have taken such input or input services. You have taken such input. You have taken such input services that are for non-business purpose. Purely non-business purpose के लिए अगर कुछ खरीदा है तो उसका ITC तो नहीं हो पाएगा भैया. तो just subtract that. So suppose he subtracted 50,000 for that. ओके फिर बोला एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर आपने इनपुट सर्विस लिया है वो भी सब्ट्रैक्ट कर दो. तो एक्सक्लूसिवली अगर आपको पता ही है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है, तो लेट अस से ही सब्ट्रैक्टेड 1,50,000. नाउ वो बोलता है अब मुझे मिल जाएगा ITC. तो हेयर द गवर्नमेंट सेज नो, देयर आर सर्टेन ब्लॉक्ड क्रेडिट दैट हैज़ बीन गिवन इन 17 सबसेक्शन 5 एंड दैट ब्लॉक क्रेडिट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. एंड 17 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट सपोज उसने और सब्ट्रैक्ट किया 1 लाख. ही सब्ट्रैक्टेड 1 लाख. इन टोटल नाउ ही इज़ हैविंग 7 लाख इन हैंड्स एंड दिस 7 लाख इज़ to be credited to electronic credit ledger. ये 7 लाख इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा कि इतना ITC सामने वाले के पास है. हाउएवर अब क्या होगा, ये 7 लाख का जो ITC है, ये 7 लाख के ITC में भी अब कितना ITC है बिल्कुल श्योरली अवेल कर सकते हैं. तो ये अवेल कर सकते हैं ITC दैट इज़ फॉर इनपुट और इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई. टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई. अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई किया है एंड दिस टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड जितना ITC है वो तो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता. तो सपोज़ कीजिए इन्हें 5 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं उनके, मतलब ये कि बस डाउट में कितना है, ये 2 लाख रुपीज़. 5 लाख तो मिल जाएगा, डाउट में कितना है, ये 2 लाख रुपीज़ का क्रेडिट इज़ इन डाउट. बिकॉज ये ऐसा क्रेडिट है जो वो इनपुट और इनपुट सर्विस का है जो पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए है, पार्टली अदर पर्पस.
पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए हैं एंड पार्टली एग्जाम पर्पस के लिए हैं एंड पार्टली टैक्सेबल पर्पस के लिए हैं। तो दिस वी कॉल एज कॉमन क्रेडिट, दिस वी कॉल एज कॉमन आईटीसी, इसे हम कॉमन आईटीसी कहते हैं। तो दिस इज कॉमन आईटीसी अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट, दिस इज कॉमन आईटीसी दैट इज अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट। सो हियर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक तो आ गया कि पहले जितना हमने पे किया उसको लो, उसमें से एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट हटा दो। देन उसके बाद जितना अवेलेबल है बिल्कुल एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है माइनस करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट कॉमन क्रेडिट, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट कॉमन क्रेडिट। अब ये कॉमन क्रेडिट तो निकल गया, कॉमन क्रेडिट के बाद व्हाट यू हैव टू डू, कॉमन क्रेडिट निकलने के बाद अब आप देखो कि जितना आपके पास क्रेडिट बचा है उसमें से एग्जेम्प्ट के लिए कितना जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंप्यूट द क्रेडिट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई दैट इज इनएलिजिबल क्रेडिट। बिकॉज सपोज करो आपने टोटल 4 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, 6 लाख का आपने किया टैक्सेबल सप्लाई, दैट मीन्स आपका टोटल टर्नओवर 10 लाख है। टोटल टर्नओवर 10 लाख पे आपका सपोज करो 5 लाख का क्रेडिट होता है, तो ये जो 4 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसमें से कितना क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो उतना क्रेडिट आप क्या कर देंगे, उतना क्रेडिट यू विल सब्ट्रैक्ट, दैट क्रेडिट व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर का देख रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर के रिस्पेक्ट में क्रेडिट कितना है, तो एग्रीगेट टर्नओवर के रिस्पेक्ट में जितना क्रेडिट है इनटू जितना हमारा क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो हम निकाल लेंगे कि हमें कितना क्रेडिट सब्ट्रैक्ट करना है फॉर द टैक्स पीरियड। ई इज़ वॉट, ई इज़ सी, ई जैसा कि मैंने बोला एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे हमारा कितना है, 4 लाख है, तो ये 4 लाख हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट वैल्यू हो गया। एफ इज़ वॉट, एफ इज़ टोटल टर्नओवर, एफ हमारा क्या होगा, एफ विल बी अर एग्रीगेट टर्नओवर, एफ हमारा क्या होने वाला है, एफ विल बी द टोटल टर्नओवर, तो ये रहा टोटल टर्नओवर एफ है हमारा। एंड D1 क्या है कि हमारा ओवरऑल, C2 क्या है हमारा, ये जो कॉमन क्रेडिट है ओवरऑल 2 लाख जो हमारा आई थिंक हमारे एग्जाम्पल में आया था, तो हमें पता चल जाएगा क्या, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, कितना इनएलिजिबल क्रेडिट है इन रिस्पेक्ट टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला जो इनपुट सर्विस है उसका क्रेडिट भी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो हम जितना भी कॉमन क्रेडिट है, हमारे केस में 2 लाख है, 2 लाख का 5% जो है दैट विल बी डीम्ड टू बी क्रेडिट फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मान लिया जाएगा। सो यहाँ पे हम इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स कॉमन क्रेडिट हमारा, कॉमन क्रेडिट में से वी विल सब्ट्रैक्ट D1 दैट इज़ एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जो क्रेडिट है, D2 दैट इज़ हमारा नॉन बिजनेस सप्लाई का क्रेडिट है। इसके बाद ये जो क्रेडिट हमारा बचता है दैट विल बी अगेन एलिजिबल क्रेडिट, जितना आप ले सकते हैं, एलिजिबल क्रेडिट फॉर your exempt your taxable supply and eligible credit for your business purpose. So this is rule number 42, ये हमारा rule number 42 है। If you have any sort of doubt in this, you can please ask me through the comment, because बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है, देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नाउ हेयर वन मोर थिंग, हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि दिस ITC फॉर CGST SGST ये सेपरेटली कैलकुलेट होगा, ओके। नाउ ये जो D1 D2 है दैट इज़ अवेलेबल क्रेडिट नहीं है, जो रिवर्स करना है हमें ये क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो इफ़ दिस D1 and D2, this D1 and D2 that is for exempt as well as नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो है, अगर इसका जो सबमिशन है,
इसका सबमिशन इज़ मोर देन द क्रेडिट अवेल्ड। इसका जो सबमिशन है ये हमने जो अवेल किया ये रिवर्सल ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू जितना क्रेडिट हो रहा है हमारा। तो इस केस में क्या होगा, इफ D1 D2 इज मोर देन द अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स्ड एवरी मंथ। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको डिटेल थोड़ा और इसका भी बता दूँ। इन एवरी टैक्स पीरियड आपने रिटर्न फाइल किया, हर टैक्स पीरियड में आपने रिटर्न फाइल किया, ठीक है। अब आपने एक एनुअल रिटर्न फाइल किया, नाउ यू फाइल्ड एनुअल रिटर्न। अब हमने चेक किया कि हर टैक्स पीरियड में जितना D1 D2 जो था, जितना भी D1 D2 था, ये जो D1 D2 एक्चुअल में नॉट अलाउड था, ठीक है, ये जितना अलाउड नहीं था ये D1 D2 ज़्यादा है, और जितना रिवर्स किया एवरी मंथ हमने टैक्स जो हमने ITC रिवर्सल किया कि ये अलाउड नहीं होगा। D1 D2 इज़ मोर देन द रिवर्सल, जितना हमें रिवर्स करना चाहिए था हर मंथ, तो रिवर्सल से ज़्यादा हमारा D1 D2 है। तो इन दिस केस द डिफरेंशियल अमाउंट हमें अभी और रिवर्स करना होगा हर मंथ में। सो द डिफरेंशियल अमाउंट हैज़ टू बी रिवर्स्ड इन एनी मंथ टिल सितंबर तक सारा रिवर्स करना होगा। एंड इंटरेस्ट कितना है, 18% पे करना होगा ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट। इंटरेस्ट हमें 18% ऑन दिस डिफरेंशियल अमाउंट पे करना होगा, बिकॉज D1 D2 वॉज मोर और रिवर्सल हमने कम किया है, एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद पता चलता है। तो इन दैट केस हर मंथ का रिवर्सल करो एंड पे 18%। However, the situation is different. Reversal is more. Reversal ज़्यादा कर दिया, although D1 D2 जो अलाउड नहीं था क्रेडिट वो कम था। तो इन दैट केस आप रीक्लेम कर सकते हैं ITC। यू कैन क्लेम द ITC। आप क्या कर सकते हैं, ITC क्लेम कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी लेटर देन द सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बाद में नहीं हो सकता, उससे पहले आपको क्लेम करना है, आप फिर से क्लेम कर लो। नाउ वन मोर थिंग, आपको लग रहा है ये ITC आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन ऑल्सो क्लेम रिफ़ंड। आप रिफ़ंड के लिए भी जा सकते हैं। इफ़ यू थिंक ये जो ITC यहाँ पे जनरेट हुआ वी आर अनएबल टू क्लेम इट, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर रिफ़ंड। हम रिफ़ंड के प्रोविजंस की तरफ जा सकते हैं। So if you have any sort of doubt in rule number 42 and section number 17, do ask me through the comment and I will try to reply ASAP. And I hope these videos are benefiting you, and जिन लोगों ने क्लास नहीं की, I bet you, I guarantee you, you can cover full course of your GST, full course of your DT, इसका learning as well as AMA through my videos. Slowly I am uploading AMA also. कल से मैं AMA भी start कर रही हूँ. Again I am coming back with that things also. इसका भी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि PM के 2-3 चैप्टर बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूँ. So you will get everything. Just do one thing, follow the videos and whatever I am telling you, and go and do watch a video जो मैंने अभी कल ही अपलोड किया, that was student problem solution. In that I have discussed each and every problem related to a student. कुछ लोगों की क्वेरी आई है, मैम इसका इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो फॉर दैट आई विल गिव यू कि थ्योरी कैसे लर्न करना है. देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो. Some students asked me about my health, so my health is much better, and I'm recovering at a good speed, touch wood, there is no issue in that. And एक और किसी स्टूडेंट ने पूछा, मैम जो आपने पहले टाइम टेबल दिया था, सो कैन वी फॉलो दैट. तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको फॉलो करवा पाऊँ, बट आई कांट गारंटी बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग सम अदर वर्क. तो कई बार मुझे वीडियो स्किप करने होते हैं, कई बार कुछ और चीज़ें स्किप करनी होती है, तो आई कांट गिव यू टाइम बाउंडेड वीडियोज़ कि मैं आज यही दे दूँगी, आज वो दे दूँगी. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. But you will get a full course video of GST, DT, AMA and ISCA, that is for sure, but I can't guarantee you with the time or timeline. If you want to follow that timetable, आप खुद follow करना चाहते हैं, that is good, there is no issue in that, but I can't guarantee. And because मैं बहुत सारे past experience से देख चुकी हूँ कि मैं बोल भी देती हूँ कि 100% आपको ये मिल जाएगा, but कुछ ना कुछ situation, circumstance ऐसे हो जाते हैं कि मुझे पहले दूसरे वर्क को complete करना होता है, और फिर कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगता मुझे प्रोफेशनली कि मैं डिले करती जाऊँ चीज़ें. ओके,
सो वॉच द वीडियो. कोई दिक्कत है पूछो, और डाउट है पूछो, और शेयर करो. दैट इज इट. स्टे पॉजिटिव. Cumulative revision. Do some make summary note and just stay at home. Okay, chalo. You will get third part. In third part we will be discussing blocked credit कौन कौन से हैं, as well as rule number 43. Okay, chalo, bye bye.